हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। हमने प्रीवियस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, इनफैक्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज लाइफ प्रोसेसेस। In that we just discussed nutrition in detail in both plants and animals. Now proceeding to the next process, that is respiration, and how does it take place in plants as well as in animals. So guys, first of all let me introduce the term, that is respiration. Respiration is basically that process in which the food that we consume is burnt in the cells, that too with the help of oxygen, so that the energy stored in the food is released into the cells. And this whole process is taking place in the mitochondrial cells of the body. Now what happens to the energy that is released during this process? The energy is used to make ATP molecules, and with the help of ADP as well as inorganic phosphate. What is ATP? It is basically adenosine triphosphate, और अगर हम ADP की फुल फॉर्म को देखें, it is adenosine diphosphate. अगर हम इस प्रोसेस को एक इक्वेशन में वाइंड अप करें, that is ADP when combined with phosphate in the presence of energy that is released during respiration, it is converted into ATP. अब हमने ये तो देख लिया, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो सेल्स में जाके स्टोर होती है, दैट टू इन द वे ऑफ ATP molecules. But what happens when the cells require energy? Whenever there is a need of energy by the cell, this stored ATP is basically broken down in the presence of water, so that it is again converted into ADP molecules and energy is released. This process is exothermic in nature. That means when ATP is converted into ADP and energy in presence of water, some amount of energy is released, and that some amount is 30.5 kilojoule per mole. Now what happens? What are the various types, and what is the difference between both the types of respiration? Basically there are two types of respiration, that is aerobic as well as anaerobic respiration. अगर हम aerobic respiration को देखें, it is taking place in the presence of oxygen. This is the one of the most important point that will define aerobic respiration, that it is taking place in the presence of oxygen, and it also produces more energy when compared to the anaerobic respiration. अगर हम end products को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज आउट होते हैं इस प्रोसेस के दौरान. अब ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होता है, बट सबसे पहले जो ग्लूकोज है, दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड that too in the presence of oxygen, and it is taking place now in the cytoplasm. चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, हमें ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कराना ही है पहले, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में पहले कन्वर्ट कराएंगे, तब फर्दर हम डिवाइड हमारा होता है कि वो एरोबिक पाथवे में एंटर करेगा कि एनाएरोबिक पाथवे में एंटर करेगा. अगर एरोबिक पाथवे में वो एंटर करता है तो फर्दर कन्वर्जन्स भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलते हैं, एंड दिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, and now it is the mitochondria where this process is taking place. Now proceeding to the anaerobic respiration. Basically anaerobic respiration अब जो होगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो भी कम होगा एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर हम देखें एंड प्रोडक्ट्स को, या तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में से एक चीज प्रोड्यूस होगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज आउट होगी. ये या तो मसल सेल्स में चलता है एनिमल्स की, या फिर ईस्ट में चलता है. चाहे मसल सेल्स हो चाहे ईस्ट हो, ग्लूकोज को पहले हमें कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा पायरुवेट में, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और दैट टू इट विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. फर्दर दिस पायरुवेट इज देन कन्वर्टेड इनटू these end products and in the absence of oxygen, because the process is anaerobic respiration. अगर हम anaerobic respiration को दोनों में देखें, एनिमल्स और ईस्ट में, तो एनिमल्स में हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और ईस्ट में देखेंगे तो हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है. Now coming to the whole pathway, how does this breakdown of glucose taking place? By various means, by various pathway.
अगर हम ग्लूकोज को देखें, सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में चेंज हो रहा था। अब पायरुवेट की तब्दील जाएगी 3 पाथवेज में। क्या पहला होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ईस्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगी इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ह्यूमन मसल सेल्स में देखें, पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. But the third pathway is come, that is aerobic respiration, that is presence of oxygen. In that too, in the mitochondrial cells, it is get converted into CO2, water and energy. अगर हम देखें कंपैरेटिव स्टडी को एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देखें, यस ऑक्सीजन इज मस्ट और वी कैन से इट इज मैंडेटरी फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, बट इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन. In terms of waste product, we can say that aerobic respiration में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और anaerobic respiration में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल मिलता है. अगर हम थर्ड पॉइंट को ले एफिशिएंसी के बारे में, तो aerobic respiration is very efficient. That means most of the glucose stored energy is released out. बट एनाएरोबिक में देखें इट इज लेस एफिशिएंट. क्यों? क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कंप्लीटली रिलीज आउट नहीं होती. सम ऑफ द एनर्जी गेट लॉक्ड इनटू द इथेनॉल ओनली. अगर हम देखें कि कितना हीट का अमाउंट रिलीज आउट हो रहा है, बोथ द केसेस में हीट रिलीज हो रही है, बट एनाएरोबिक में हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज लेस व्हेन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. अब ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी रिलीज आउट हुई रेस्पिरेशन से वो किन प्रोसेसेस में यूज हो रही है. तो एनर्जी को हम वेरियस प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड मेनी अदर मेटाबॉलिक पाथवेज, जिसमें हम इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. बेसिकली प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे चलता है? रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने फोटोसिंथेसिस से स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, एंड रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर हम डे टाइम में देखें तो प्लांट बेसिकली एब्जॉर्ब करता है CO2 को और रिलीज आउट करता है ऑक्सीजन. ये होता है डे टाइम में. इस प्रोसेस को हमने देखा था, दैट वाज नोन एज फोटोसिंथेसिस. बट अगर हम नाइट टाइम में देखें तो प्लांट ऑपोजिट करता है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, एक्सपेल आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. नाउ इट इज नोन एज रेस्पिरेशन. ऑलराइट, अब CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. क्या होता है, जो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है वो इंश्योर करती हैं कि पूरा का पूरा सेल कांटेक्ट में है एयर के. क्यों? ताकि डिफ्यूजन इजिली कैरिड आउट करा सके. अब जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेलिंग एज वेल एज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. इस पे डिफ्यूजन का डायरेक्शन डिपेंड करेगा. अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखें प्लांट्स में, तो पायरुविक एसिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड carbon dioxide, and that too in the presence of NADH and H+, it is converted into NAD as well as ethanol is released out. And now coming to the respiration in animals. Basically अगर हम animals की बात करें, they are more complicated as compared to plants. They have just evolved different organs for the uptake of O2 and also for getting rid of CO2 produced. अगर हम terrestrial animals को देखें, ये basically जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे ब्रीथ करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो एब्सॉर्ब होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा इन द डिफरेंट एनिमल्स. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी टू द एक्वेटिक एनिमल्स, दे नीड टू यूज ऑक्सीजन दैट इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन द वाटर, and rate of breathing is also much faster in the aquatic animals when compared to terrestrial animals. क्यों? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वो कम है ऑक्सीजन की वाटर के अंदर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ऑक्सीजन एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है. ऑलराइट, अगर हम फिशेस का एग्जांपल लें एक्वेटिक एनिमल्स में, दे जस्ट टेक इन वाटर through mouth and they forces so that it can pass through the gills, and where the dissolved oxygen is taken up by the blood and the waste product is released out from the body. अगर हम ह्यूमन बींग्स पे आए रेस्पिरेशन, it gets much more complicated. अगर हम मेन ऑर्गन्स की बात करें तो नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, these are the main organs which are helping in the process to carry out. हम देखेंगे कि
फिगर्स में देखिए आपको पूरा पाथवे समझ आ रहा है कैसे नेजल कैविटी से होते हुए वो फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलाई तक जाती है जहां पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। इन दोनों डायग्राम से आपको बहुत चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसे फर्दर देखें तो सबसे पहले एयर एंटर करती है हमारे नॉस्ट्रल्स के द्वारा, दैट यू कैन इजीली सी। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड इन द नॉस्ट्रल्स you just have hairs and mucus present so that all the dust particles or we can say foreign particles get trapped out there only. उसके बाद जो क्लीन एयर है वो आपकी फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स को कवर करते हुए आगे बढ़ती है। और हम ट्रैकिया को देखें तो इसके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। क्यों? इनका ये रोल है कि अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो कोलैप्सिंग से प्रिवेंट कराते हैं ट्रैकिया को। फिर ब्रोंकिया फर्दर डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। वो अल्टीमेटली एंड होता है इनटू टाइनी एयर सैक्स जहां पे एयर को मेनली हमें पहुंचाना है, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज वेरी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स ताकि गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके। इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज CO2 एंड O2। O2 हमें अंदर पहुंचानी है, CO2 हमें बाहर निकालनी है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सी गाइस, अब हमें थोड़ा सा फोकस करना है फिगर के ऊपर। जब हम ब्रीद इन एयर करते हैं, दैट इज वी जस्ट इनहेल एयर, what happens, the muscles of the diaphragm get contracts and moves downward, and at the same time the chest cavity gets expanded and air enter into the lungs. But what happens during exhalation? What happens when we breathe out air? Opposite. What happens? The muscles of the diaphragms get relaxed and moves upward, and the chest cavity contracts and air comes out of the lungs through the nostrils. जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं, डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स, दैट इज इट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी सेल। इन केसेस में हमारा रोल आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। दे बेसिकली बाइंड टू द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द डिफरेंट टिश्यूज। जैसे कि हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और वेरियस टिश्यूज तक पहुंचाता है और फिर CO2 के साथ बाइंड करके उसे आउट कर देता है। CO2 is more soluble in water as compared to oxygen, इसलिए ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर। Now, what is the basic difference between respiration and breathing? This is very important topic that we should know where does the difference lie between the two. Respiration क्या है? हर टाइम चलेगा, ठीक है। वही ब्रीदिंग भी हर टाइम चलता है, बट रेस्पिरेशन हर एक सेल में चलता है, बट ब्रीदिंग सिर्फ लंग्स में चलता है। ऑलराइट, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है इन ऑर्डर टू रिलीज आउट एनर्जी, बट ब्रीदिंग इज जस्ट सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 दैट टू टेकिंग प्लेस इन द लंग्स। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है वो यूज की जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेता है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ब्रीदिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीदिंग। अब आते हैं कुछ मोर टू नो, मोर पॉइंट्स दैट वी शुड नो। सबसे पहले हम मूवी कोई स्टार्ट होती है तो हम कोई एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होता है, सम ऑफ द टाइम यू जस्ट सी दैट इट इज रिटन दैट कंजप्शन ऑफ टोबैको इज वेरी डेंजरस और वी कैन से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाई सो? अगर हम टोबैको को कंज्यूम करते हैं, दैट टू इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज सिगार और बीड़ीज और हुक्का और गुटखा, it may lead to oral cancer. It may cause oral cancer. Its consumption commonly affects the basic organ that is tongue, lung, heart and liver. And in case of smoking, that too, that is said that it is injurious to health. Why?
because these just destroy the ciliary hairs that is present in the nostrils, or we can say that upper respiratory tract, which may lead to invasion of germs. मतलब हमारी बॉडी में germs easily enter कर जाते हैं, dust easily enter कर जाती है, जितनी भी smoky particles है that get easily entered into our body, and that may cause infection, cough and lung cancer. So guys, don't go for the tobacco and smoking. It is very injurious to health. Now comes to the revision time. See guys, पहला क्वेश्चन आता है, how will you differentiate between aerobic and anaerobic respiration? Major point क्या आएगा? Aerobic is taking place in the presence of oxygen and it is producing more energy, whereas anaerobic is taking place in the absence of oxygen and it is producing less energy. अगर हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करें प्लांट्स में, दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जब हम उल्टा कर देते हैं, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, दैट वी हैव जस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड टुडे ओनली. व्हाट हैपेंस व्हेन एयर गोज इन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? तो क्या होता है, डायफ्राम की पोजीशन कैसी होती है, चेस्ट कैविटी की पोजीशन कैसी होती है, एयर कैसे अंदर जाती है, that you have to explain with the help of diagram that we just discussed just now. Next आता है differentiate between the process of respiration and breathing. Very important topic that we study in the tabular form. These points are just enough to explain that where does the difference lie between the two. Why it is said that smoking is injurious to health? They just damage the ciliary hairs and infection can easily goes in and it may lead to the lung cancer. Thank you guys. If any query, you can just drop me in the comment box. And please don't forget to like, subscribe and share with your loved ones. Stay home, learn more and stay healthy. Thank you.